Okay students, now we have to find two velocities after collision, right? We have to calculate V1 and V2. You can say this is equation number 3. Now from equation number 3 we will calculate from equation number 3 U1 plus V1 is equal to V2 plus U2. We will calculate V2 from here. It is U1 plus V1 minus of U2. Now we will put it in this equation in which we have conservation of momentum. M1 into U1 plus M2 into U2 is equal to M1 into V1 plus M2 into V2. I will put the value of V2 in this relation. So put it in M1 into U1 plus M2 into U2 is equal to M1 into V1 plus M2 into V2, right? So this is M1 into U1 plus M2 into U2, M1 into V1 plus M2 into, this is U1 plus V1 minus of U2, right student? Now I will combine the terms which are containing, this is M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1. This is M1 V1 and this is M2 V1. So if I will take common V1, M1 plus M2, right? Plus M2 into U1 minus M2 into U2. Now combine these two terms. So it become M1 minus M2, M1 minus M2 into U1. और ये इधर जाएगा या इसको इधर लेके आएंगे. This is 2M2 U2 is equal to V1 into M1 plus M2. Now what it become? V1 is equal to आप इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके आइए. This is M1 minus M2 into U1 plus 2M2 U2 divided by M1 plus M2. Right student? अब V1 we have calculated. This is the velocity of first mass after collision. Now second mass, second के लिए आप calculate भी कर सकते हो similarly, or you can write similarly V2 as change M1 into M2 और M2 को किस में चेंज कर दीजिए? M1 में. ठीक, आपने सिर्फ यही करना है. M1 को किस में चेंज करना है? M2 में. और M2 को किस में चेंज करना है? M1 में. और U1 को किस में चेंज करना है आपने? U1 को U2 में और U2 को U1 में. तो आपके पास ये आ जाएगा M2 माइनस M1. M1 की जगह मैंने क्या कर दिया? M2. M2 की जगह M1. और आपके पास ये क्या हो जाएगा? दिस इज U1 की जगह U2 प्लस 2M1 इंटू U1 और नीचे आपका सेम रहेगा. दिस इज M1 प्लस M2. इज इट क्लियर? तो आपने ये चेंजेस करने हैं. M1 इज रिप्लेस्ड बाय M2, M2 इज रिप्लेस्ड बाय M1. So this is the method to learn it. No need to calculate it again, right? Or you can use the simple calculation method. Now we have to discuss special case. Case 1. Case 1 is when the collision takes place between the two bodies of equal masses. When the two colliding bodies are of equal masses. अगर उनके masses क्या हैं? Same. तो M1 इस किसके equal हो गया? M2 is equal to M. तो what is the velocities become? देखो first इसको आप mark कर लो, anything like fourth कर लेते हैं and this is fifth. Put it in from fourth, from equation number 4. Equation number 4. तो ये क्या हो जाएगा? This is M minus M into U1 plus 2M into U2 divided by 2M. Right? M plus M, 2M. This get cancel out. This become 2M into U2 divided by 2M. It get cancel out and V1 is equal to U2. This means क्या हुआ? After collision इनकी velocities interchange होंगी. Right? अब V2 देखें कितना आएगा? V2 में M minus M ये 0 हो गया plus 2M into U1 divided by 2M. तो ये आ गया 2M into U1 divided by 2M. This is equal to U1. This means after collision, the velocities of masses get interchange.
इंटरचेंज, यानी जो वेलोसिटी फर्स्ट मास की थी वो किसकी हो गई, सेकंड की। फर्स्ट को कौन सी वेलोसिटी मिली, सेकंड मास की, राइट। और सेकंड को कौन सी मिली, सेकंड को किसकी मिली, फर्स्ट मास की, राइट स्टूडेंट्स। नाउ केस टू में हम ये मान के चलते हैं फर्स्ट बॉडी आपकी इंसिडेंट बॉडी है, ए बॉडी आपकी इंसिडेंट है, ठीक है। और जो आपकी बी बॉडी है वो है टारगेट, बी क्या है, टारगेट। और टारगेट जो है आपका क्या है, रेस्ट पे, बी बॉडी बी इज एट रेस्ट। तो अब इसमें हम ये मान के चलेंगे व्हेन द टारगेट बॉडी बी इज, व्हेन द टारगेट बॉडी बी इज एट रेस्ट मीन्स U2 इज इक्वल टू 0, U2 आपका 0 है। तो V1 कितना हो जाएगा, देखें V1 कितना हो जाएगा अगर U2 0 है, दिस इज M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। और V2 कितना हो जाएगा अगर ये 0 हो गया, तो दिस इज 2M1 U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो अब हम ये इक्वेशंस यूज करेंगे, राइट। वी हैव टू डिस्कस सब केस, आपको केस 2 का सब केस डिस्कस करना है, सब केस, दिस इज केस 2, इसका सब केस, राइट, सब केस 1 में हम ये कहते हैं अगर टारगेट बॉडी आपकी रेस्ट पे है, व्हेन द टू मासेस आर इक्वल, व्हेन टू मासेस आर इक्वल, दिस मीन्स M1 इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। तो V1 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, और V2 क्या हो गया, दिस इज 2M। इसमें पुट करिए इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, पुट इट इन 6 और एंड 7। तो V1 कितना हो जाएगा 0 और V2 कितना हो जाएगा 2M इंटू U1 डिवाइड बाई 2M। तो दिस इज V2 इज इक्वल टू U1। तो अभी हमने बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड कि आफ्टर इफ द टू मासेस आर सेम देन देयर वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज। तो यहाँ ए बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, U1 से, बी क्या था, रेस्ट पे। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन आपकी ए क्या आ गई, ए किस पे आ गई, रेस्ट पे, और बी किस में आ गई, बी स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ U1। इज इट क्लियर। नाउ सब केस टू, अब हम ये मान के चलेंगे व्हेन द टारगेट बॉडी इज टारगेट मास और बॉडी B is very heavy, target mass which is at rest is very heavy means M2 is greater than M1, right। now from equation number 6 and 7, तो अब हम क्या करेंगे, neglect M1 in comparison of M2। हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे इन कंपेरिजन ऑफ M2। तो V1 कितना आ जाएगा, ये था M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, राइट। तो अब आप M1 को निगलेक्ट करिए, तो V1 क्या हो गया, माइनस M2 इंटू U1 डिवाइड बाय M2। दिस गेट कैंसिल आउट, M1 को हमने निगलेक्ट कर दिया, दिस इज माइनस U1। और इसका जो V2 बनेगा, V2 होगा आपका 2M1 इंटू U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो आपका V2 आपका अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि M1 स्मॉल है, तो M1 स्मॉल हुआ तो ये टर्म आपकी ऑलमोस्ट क्या हो गई, 0। तो स्टूडेंट इसमें आप ये देख सकते हो, दिस इज इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। ये वॉल है, ठीक है, वॉल आपका टारगेट है, ये टारगेट बॉडी है। यहाँ से हमने एक बॉल को थ्रो किया, तो अब ये इनिशियल वेलोसिटी U1 से आ रही थी, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस U1, बिकॉज इट्स डायरेक्शन गेट चेंज। तो ये टारगेट बॉडी किस पे है, बॉल किस पे है, दिस इज एट रेस्ट। सो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल फॉर दिस, द मास इज वेरी हेवी। नाउ सब केस 3, when the target body is of negligible mass, when the target body at rest, when the target body at rest is of negligible mass means M2 is very very less as compared to M1। तो अब आप किसको निगलेक्ट करेंगे यहाँ पर, M2 को। सो V1 बिकम्स, इसी रिलेशन में V1 क्या हो जाएगा, दिस इज M1 इंटू U1
plus divide by m1, right? This get cancel out and it is u1. Means the velocity of first mass remains same. और what is this velocity of second mass v2? m1 आपका m2 neglect करना है. This is 2m1 u1 divide by m1 आप as it is रहेगा. m2 neglect करोगे. This is m1, it get 2u1. तो अगर आपकी टारगेट बॉडी लाइट मास की है तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट मास कंटिन्यू टू रिमेन विद द सेम स्पीड और सेकेंड मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डबल. Is it clear? So these are the sub cases we have discussed. Physical meaning is clear to all of you. Here also it is clear to you. आपका जो ये केस है सब केस 1, when the two masses are equal, this concept is used in nuclear reactor, right? Nuclear reactor में हम इसको use करते हैं to which okay, in the next video I will discuss, right? Thank you. Have a nice day.